Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 5th, that is human capital formation, we studied about meaning of human capital formation. So human capital formation refer to development of abilities and skill among the population of a country. It is a process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education and experience. Then we talked about sources of human capital formation. So there are 5 sources of human capital formation, in which first was expenditure on education. So labor skill of educated person is always more than that of an educated person, which enable him to generate more income than that of uneducated person. Spending on education by individual is similar to spending on capital good by a company. Then we talked about the next source, that was expenditure on health. So poor health and undernourishment affect the quality of manpower. So expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and improve quality of life of the society. Third source of human capital formation was on-job training. It increased the skill and efficiency of work and lead to increase in production and productivity. On-job training may be taken in different forms, like worker may be trained in firm itself under supervision of a skilled worker, and worker may be sent for off-campus training. Next source was expenditure on migration. So people migrate from one place to another in search of job that fetch them higher salary. Migration involve two kinds of cost, that is cost of transportation and higher cost of living in the migrated areas. Next source was expenditure on information. It involves amount spending on seeking information about educational institution, their educational standard and cost of education. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about importance of human capital formation. So let's start. So क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो पहला पॉइंट देखेंगे इसमें हम इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फिज़िकल कैपिटल. सो फिज़िकल कैपिटल का इफ़ेक्टिव यूज़ करना, और इफ़ेक्टिव यूज़ कब होगा? जब हमने अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से किया होगा. तो देखते हैं इसमें पॉइंट. द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिज़िकल कैपिटल डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो किसी भी फिज़िकल कैपिटल की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है. यानी कि जो भी आपकी फ़िज़िकल कैपिटल है, जैसे लैंड, बिल्डिंग या जो भी आपके रिसोर्सेज है, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनकी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है. यानी कि अगर आपने ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से डेवलप किया है, एजुकेट किया है, स्किल दिया है, उनकी हेल्थ पे खर्चा किया है, तो वहाँ पर फिज़िकल कैपिटल की ग्रोथ भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसमें. द फिज़िकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग. फिज़िकल कैपिटल केवल तभी क्रिएट की जा सकती है जब क्या होगा? आपका जो भी ह्यूमन कैपिटल है वो हार्ड वर्क करे और इंटेलिजेंट वर्क करे. और हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट वर्क तभी होगा जब हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही से किया है. स्किल ऑफ ह्यूमन हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिज़िकल कैपिटल. जो भी स्किल्स होते हैं ह्यूमन के, वो हेल्प करते हैं फिज़िकल कैपिटल का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में. तो ऑल एंड ऑल इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि अगर आपको फिज़िकल कैपिटल का अच्छे से यूज़ करना है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है फिज़िकल कैपिटल की. इसके अलावा क्या है कि फ़िज़िकल कैपिटल तभी क्रिएट की जा सकती है जब वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन बीइंग का हार्ड वर्क और इंटेलिजेंट वर्क हो. और इससे क्या होता है? इफ़ेक्टिव यूज़ होता है आपके फ़िज़िकल कैपिटल का. दूसरा पॉइंट देखेंगे.
जो कि आपके फर्स्ट ही पॉइंट से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. Human capital formation raises the production and productivity as knowledgeable and skilled worker make better use of all resources. तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाता है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होता क्या है, जो स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्क होता है वो बेटर यूज़ करता है अपने रिसोर्सेज का, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर होती है. एग्जाम्पल से समझेंगे. यहाँ पर हम जैसे कि कोई एक स्किल्ड वर्कर है, मैंने उसे कुछ रिसोर्सेज दे दिए कि आप इसका यूज़ करके कोई प्रोडक्शन का काम करो, कुछ प्रोड्यूस करके दो. और दूसरा मैंने आपको दे दिया या किसी भी एक इंसान को दे दिया जो अनस्किल्ड है. तो अनस्किल्ड वर्कर को इतना नहीं आएगा, वो नहीं जानेगा कि किस तरीके से प्रोड्यूस करना है या किस तरीके से उस रिसोर्सेज के साथ डील करना है, तो रिसोर्सेज का वो वेस्टेज करेगा. और जहाँ पर मैंने स्किल्ड वर्कर को रिसोर्सेज दिए हैं वो उस रिसोर्स का बेटर यूज़ करेगा और इस तरीके से वो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा. तो यानी कि अगर हमारा लेबर नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनका अच्छे से यूज़ करना जानता है और अच्छे से यूज़ करता है. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन टेक्निकल स्किल ऑफ पीपल. तो किसी भी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना या क्वालिटी इम्प्रूव होना प्रोडक्शन, ये डिपेंड करता है लोगों के टेक्निकल स्किल पे, यानी कि उसके दिमाग में या उसकी जो भी स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उस पर डिपेंड करता है, जो कि वो केवल एक्वायर कर सकता है बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हिज मेंटेन्ड हेल्थ. ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ यहाँ पे तक आपको ये पॉइंट. दूसरा हम देखेंगे इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी एंड एडवांसमेंट विच फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशंस. तो देखिए हम खुद से समझेंगे इस पॉइंट को. अगर हम वेल एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे और हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी, या इन सिंपल लैंग्वेज बोलें तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो रखा होगा, तो हम बेहतर समझ पाएंगे जो भी हमारी सोसाइटी में इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहे होंगे उनको, और इन सारी चीज़ों में हम कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे. एजुकेशन प्रोवाइड करती है नॉलेज हम लोगों को, जिससे हम सोसाइटी में होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है, उनको इजीली समझ पाते हैं, ग्रैस्प कर पाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इन्वेंशन और इनोवेशंस में. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सिंपल पॉइंट है ये भी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड. जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे जो सोचने का तरीका है, नज़रिया है, वो भी बदल जाता है, उसमें भी ब्रॉडनेस आती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड इफ़ पीपल टुवर्ड डेवलपमेंट. तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के एटीट्यूड में. अगर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो भी सही चीज़ों को समझेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. बट अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो वो भी नहीं समझेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो अगर हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों का मेंटल आउटलुक चेंज होगा, जो उनकी सोच है, समझ है, उसमें चेंजेस आएंगे, जो कि क्या करेगा, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या हमारे देश के डेवलपमेंट को भी हेल्प करेगा. तो लोगों का नज़रिया चेंज करना ये भी कैसे पॉसिबल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही पॉसिबल है. सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में भी मदद करता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि किसी भी नॉर्मल इंसान का लाइफ का ड्यूरेशन, यानी कि कितना लंबा समय वो जी पाता है. फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है. गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इनेबल पीपल टू लिव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी किसी भी इंसान को हेल्दी और लंबा जीवन देती है.
दिस इन टर्न एड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी रहा है, यानी कि अच्छी बेहतर ज़िंदगी वो जी रहा है अगर वो एजुकेटेड है और उसकी सेहत अच्छी है तो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। HCF ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो HCF यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन, अब देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे। अगर ये तीनों चीज़ें मिली हैं किसी भी इंसान को तो उसकी लाइफ एक बेहतर लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जीता है और इम्प्रूव होती है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट देखेंगे कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम वेल एजुकेटेड हैं तो जो भी हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसमें भी थोड़ा कंट्रोल आता है। It has been noticed that educated person have smaller families in comparison to illiterate families। तो ये देखा जाता है कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनकी फैमिली यूजुअली क्या होती है, छोटी फैमिलीज होती हैं इन कंपैरिजन टू इलिटरेट फैमिलीज। लिटरेट यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में लिटरेट एजुकेटेड लोगों की जो फैमिली होती है वो छोटी होती है। सो एजुकेशन स्प्रेड इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है ताकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल किया जा सके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो हम देखेंगे आज हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। सो आज हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने फिज़िकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकें, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। जैसे कि ट्रेंड एंड स्किल्ड वर्कर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, जिसके कारण क्या होती है, इफ़ेक्टिव यूज़ करेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ता है अगर रिसोर्सेज ठीक से यूज़ हुए होंगे। इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो एजुकेटेड अगर हम हैं, स्किल्ड हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपनी सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं इन्वेंशंस और इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को अपनी सोसाइटी में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, तो हमारी जो एटीट्यूड है उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है अगर हमारे में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है तो, या हमने अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया है तो। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हमारी औसत आयु को बढ़ाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी से हम अवेयर होते हैं और ये हम अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं, जिससे हमारी हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम एक तरीके से जी पाते हैं। हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।